students, my name is Neha Yadav and I am from Noida Institute of Engineering and Technology, Greater Noida Pharmacy Institute. Today I am going to deliver my third lecture on topic gases and aerosols. Okay, so before proceeding to this lecture, I would like to brief you the previous lectures what we have covered in our previous classes. In the first lecture, we have completed the state of matter with changes in state of matters with latent heat as well as vapor pressure. This we have already covered in our first lecture. In the second lecture, we talked about sublimation critical point as well as critical point, triple point and eutectic mixtures. So, now onwards along with that I am continuing with my next topic, that is gases and aerosol. So, you can say gas is also a kind of a matter, जो हमने पहले ही बात किया था कि मैटर क्या होता है हमारा. मैटर कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट्स, सॉलिड और लिक्विड और गैस. So today we are discussing about the third state, that is gaseous state. Gases are compressible fluids and has no definite shape. ये जैसे आपको पहली क्लास में ही बताया कि अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की बात करते हैं तो इनमें क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या थी गैस की, सॉलिड में बिल्कुल नहीं होती है बिकॉज सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, राइट. बट आप अगर बात करते हैं गैसेस की तो गैसेस क्या हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होती हैं जिनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है. क्यों डेफिनेट शेप नहीं होती है, जिसको में हम उसको रखेंगे, जिस तरीके के कंटेनर में रखेंगे, इट ऑक्यूपाइड दैट स्पेस. फॉर एग्जांपल इफ आई केप्ट इन दिस काइंड ऑफ अ कंटेनर, इट विल टेक द शेप ऑफ दिस काइंड कंटेनर. अगर मैं उसको किसी बड़ी बॉटल में रखती हूँ लाइक एक फ्लास्क में, जार में, तो उस जार का शेप ले लेगा. और इफ आई स्प्रेड इन दिस एंटायर रूम, तो इस एंटायर रूम में वो गैस क्या है, स्प्रेड हो जाएगी. सो दिस इज दैट कि गैस जो है उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है. इन गैसेस the intermolecular forces are the weakest compared to that of liquid and solid. तो liquid और solid में हमारी intermolecular force क्या है, अच्छी होती है, पर गैस में क्या है, बहुत कम होती है. weakest कंपेयरिंग टू लिक्विड एंड सॉलिड, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, है ना, वीक होती है तभी तो वो कंप्रेस हो जा रहे हैं. अगर रॉबस्ट या रिजिड होंगी तो वो तो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे. देयरफॉर द बिहेवियर ऑफ गैसेस इज कंपैरेटिवली वेरी सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल. इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो गैस का बिहेवियर है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत प्रेडिक्टेबल है, वी कैन प्रेडिक्ट. ठीक है. सो the following below mentioned few applications of that gases. First is anesthetic gases, next is sterilization gases, third is fuel gases, next gases in the chemical process and refrigeration gases. Next we have some characteristics of gases. I have already drawn a table in which it is mentioned like कि what are the characteristics of the gases, what are the SI units and what are the notations. So first of all we will talk about pressure. We will denote it by P, capital P or by small p. SI unit of pressure is Pascal, kilopascal or megapascal. Notation, how we can notify it, is PA or KPA or MPA. We can notate in the form. Next we have the volume, that is V. It is the SI unit of volume is meter cube or liter and it is denoted as M cube or I. Third we have temperature. It is having the SI unit Kelvin, means we have the SI unit of temperature is Kelvin, we can denote it in the form of K. Next we have mass or concentration. It is having, means we can say the SI unit of mass is kilomoles or moles and we can notate it in the form of kmol or mole. So the existence of gas state largely depends on the temperature. Some substance exists as gases at room temperature. Example, oxygen, carbon dioxide and nitric oxide gas. They all can exist at room temperature. Next, what are the properties of
gases. अब हमें पढ़ना है कि गैस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है. सो फर्स्टली we'll proceed to that. A sample of gas assumes both the shape and volume of the container. जो भी आपका गैस का सैंपल होगा वो क्या करेगा, जिस भी कंटेनर में आप रखोगे अकॉर्डिंग टू दैट वॉल्यूम इट ऑक्यूपाई द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर. और गैसेस क्या है हमारी, कंप्रेसिबल होती हैं, दूसरी प्रॉपर्टी. थर्ड, द डेंसिटी ऑफ गैसेस आर मच स्मॉलर देन दोज ऑफ लिक्विड. लिक्विड से ज़्यादा गैस की डेंसिटी क्या है, कम होती है. एंड सॉलिड्स and are highly variable depending on temperature and pressure. सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा गैस की डेंसिटी कम होती है और ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन द टेम्परेचर और द प्रेशर. गैसेस फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशंस विथ वन और अनदर इन एनी प्रोपोर्शन. तो गैस क्या है आपके, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं सॉल्यूशन में, एक या दूसरे के साथ एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में. ओके. So nextly we have what are the kinetic molecular theory of gases. अब kinetic molecular theory of gases की हम बात करते हैं. तो सबसे पहले the basic assumption of kinetic molecule theory are, पहली चीज क्या assume की गई, the volume occupied by the individual particle of a gas is negligible comparing to the volume of a gas itself. Means कोई भी पार्टिकल है ना, द वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय अ इंडिविजुअल पार्टिकल, किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल ने अगर कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है और वो पार्टिकल गैस का है, ठीक है, तो वो क्या है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस. सेकेंड थिंग, द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सर्ट्स नो अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती है, ठीक है, ऑन ईच अदर, और ना ही तो उनकी सराउंडिंग्स में होती है. थर्ड, द गैस पार्टिकल्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. वो जो गैस पार्टिकल्स क्या हैं, वो रैंडम मोशन में हैं और कांस्टेंट रेट स्टेट में है. मतलब कांस्टेंट मीन्स जो उनके जाने का स्टेट है वो भी कांस्टेंट है और मोशन तो रैंडम है ही उनका. रैंडम मोशन में कॉन्स्टेंटली वो गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं in a straight line until they collide with another body. जब तक वो किसी भी दूसरी बॉडी से कोलाइड नहीं करते हैं. मतलब वो पार्टिकल कांस्टेंट स्टेट में, ठीक है, रैंडम मोशन में मूव करते हैं, स्ट्रेट ही चलते हैं जब तक कोई दूसरा उनके सामने कंटेनर ना हो या कोई अदर चीज़ ना आए जिससे वो कोलाइड कर सके या कोई दूसरी बॉडी ना हो, तब तक वो क्या करेंगे, स्ट्रेट रैंडम मोशन में कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. Third kinetic theory is that the collision exhibited by gas particles are completely elastic. ठीक है, तो जो collision होता है गैस पार्टिकल में वो आपका कैसा है, completely elastic. ठीक है, elastic means they have a elasticity, means जैसा collision होगा तो वो stretch हो जाएंगे, collision होगा stretch कर जाएंगे. When two molecule coincide, total kinetic energy is conserved. फॉर एग्जाम्पल जैसे बलून है, बलून में अगर हम गैस फिल करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको अगर फ्रंट से प्रेस करते हैं तो हमने कोलिजन करना शुरू किया. जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो उसका जो राउंड शेप था वो उसका ओवल शेप होना शुरू होगा या एकदम से स्क्वीज होना शुरू हो जाएगा. क्यों, जो मॉलिक्यूल हैं वो कोलाइड होने लग गए और गैस के साथ हमने गैस में तो इलास्टिसिटी है ही है ना, हमने जिसमें रखा है गैस को उसमें भी इलास्टिसिटी है, तो वो कंप्रेस हो जाता है. द लास्ट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली. इन this implies that all molecular motion creases if the temperature is reduced to absolute zero. So this is the 5 kinetic molecular theory of gases. So I'll just brief it once again. That first theory is that volume which is occupied by the individual particle of a gas is negligible comparing to the volume of a gas itself. Next, the particle of an ideal gas exert no attractive forces on each other on their surroundings. Third, the gas particles in a constant
state of random motion and move in a straight line until they collide with another body. Next, they collide exhibit by gas particles are completely elastic. When two molecules collide, total kinetic energy is conserved. Then lastly, the average kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to absolute temperature only. This implies that all molecular motion increases if the temperature is reduced to absolute zero. Now, what we have ideal gas laws. This is also you have already learned in your 11th and 12th क्लास की गैस लॉ क्या होता है. गैस लॉज में आपने पढ़ा होगा ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. तो आज हम थोड़ा सा इन्हीं को कन्वर्ट मीन्स डिटेल पढ़ते हैं. गैस लॉ में, गैस लॉ तो आपको पता ही है कि व्हाट इज गैस लॉ. पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. दिस इज द आइडियल गैस लॉ. इसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस लॉ. सो वी विल डिस्कस दिस, देन वी विल डिस्कस टू आर द आइडियल गैस लॉ. First law we have Boyle's law. Boyle's law क्या है? The law states that the pressure of a fixed amount of gas at a constant temperature is inversely proportional to the volume of a gas. अब Boyle's law क्या बोलते हैं? इस law में उन्होंने ये बताया कि वो किस चीज़ को constant कर रहे हैं. They were doing the constant to the pressure. उन्होंने प्रेशर को क्या किया है? कांस्टेंट कर दिया है. ठीक है. सो बॉयल्स लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस. सो इन दिस व्हाट दे डन कि उन्होंने सबसे पहले इसमें जो बात करी है, दे हैव टेकन दैट कि उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया. ठीक है. टेम्परेचर कांस्टेंट करने के बाद दे सेड P is directly inversely proportional to 1 upon V. ठीक है. What said? Boyle's law बता यही बोल रहा है. Boyle's law says that pressure of a fixed amount of a gas, pressure of a fixed amount of a gas, pressure of a fixed amount of a gas at a constant temperature. Temperature को हमने क्या करा है? Constant रखा है. तो आपका क्या हो जाएगा? It is inversely proportional to the volume of a gas. In this what we have? We will have P V is equals to constant. Then it will comes to your what? आप इसको अगर डिनोट करेंगे तो आपका हो जाएगा P1 V1 is equals to P2 V2. ठीक है. दिस इज आर बॉयल्स लॉ. ठीक है. बॉयल्स लॉ में सिंपली हमको ये ध्यान रखना है कि हमने इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. बॉइल्स इन अ सिंपल फॉर्म आप बोलो बॉयल करना, बॉयल है ना. बॉयल में क्या करना? बॉयल करने के लिए टेम्परेचर. तो इसमें हम टेम्परेचर को ही कांस्टेंट कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं. नेक्स्ट लॉ वी हैव चार्ल्स लॉ. दिस लॉ स्टेट्स दैट pressure of a fixed amount of a gas at a constant at a fixed pressure the volume of a gas is proportional to the temperature of the gas. इसमें अब हमने क्या बात करी है? इसमें ये किया जा रहा है कि अगर हम अपना प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, वी आर चार्ल्स सेड कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, हम प्रेशर में चेंज नहीं करते हैं, देन व्हाट विल वी हैव? तो एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम बात करें, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया है. इट सेज दैट V is proportional to T. V is directly proportional to T. It comes to your V upon T. ठीक है. V upon T हो गया, volume upon your temperature. So this is comes to your constant, right? So in this what you will do? You can say V1 upon T1, volume 1 upon temperature 1 is equals to volume 2 upon temperature 2. This is our Charles law. Clear with Charles law? Next we have our Gay-Lussac law. In this what will that Gay-Lussac sir said? This law is a special case of ideal gas law. जो ये law है वो ideal gas law का एक special case है. क्यों special case है? कि this law applies to the ideal gas held at a constant volume, allowing only the pressure and temperature to change. इन्होंने अलग चीज़ बताई. क्या? इन्होंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी है ना.
बॉयल ने क्या करा था, सबसे पहले बॉयल ने वॉल्यूम को, बॉयल ने आपका टेम्परेचर कांस्टेंट किया है ना, उसके बाद चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स ने आपका प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है ना, बॉयल्स ने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, चार्ल्स ने प्रेशर कांस्टेंट किया, गेलोसिक सर ने क्या कर दिया, ही सेड कि हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं और हम प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। इन्होंने थर्ड थ्योरी दे दी। तो इन्होंने क्या चीज़ बताई कि अगर इफ वी टेक कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट, इफ वी आर टेकिंग वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम में, देन इट सेड दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर pressure. This what? Temperature is directly proportional to the pressure. Here we have your pressure upon temperature. It's constant. So we can write this in the form P1 upon T1 is equals to pressure 2 upon T2. This is done by your Gay-Lussac law. Gay-Lussac में क्या हुआ, Gay-Lussac सर ने बोला कि ठीक है, उन्होंने अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है बॉयल ने, चार्ल्स ने अगर प्रेशर को कांस्टेंट किया है, मैं काम करता हूँ, मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट करता हूँ। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो भी उन्होंने ये थ्योरी आइडेंटिफाई कर दी, इन दैट दिस लॉ इज अ स्पेशल केस, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या है कि उन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज रखा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है। अनदर वी हैव एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या है? This law states that the volume of a sample gas is directly proportional to the number of moles in the sample at a constant temperature and a pressure. तो एवोगैड्रो लॉ में क्या हुआ, इसमें एक अलग ही थ्योरी निकली। क्या निकली कि जो भी हम सैंपल लेंगे गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे, जो हमारे पास PV इज इक्वल्स टू NRT है। N stands for number of moles, यहाँ पे जो मैं N की बात कर रही हूँ that is number of moles here, ठीक है। So एवोगैड्रो में क्या बताया गया, this law states that the volume of a sample gas is directly proportional, number of moles, जितने number of moles है उसके directly proportional हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये बताया गया, ये मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है। आई हैव टेकन 2 कंटेनर्स, सपोज दिस इज A एंड दिस इज माई B कंटेनर, दिस इज A एंड दिस इज B कंटेनर। अब मेरे पास इसमें है प्रेशर 1, इसमें है प्रेशर 2, और दोनों प्रेशर क्या है मेरे, कांस्टेंट हैं, ठीक है। सेकेंड मेरे पास क्या है, टेम्परेचर 1 एंड आई कैन से दिस इज टेम्परेचर 2। टेम्परेचर भी मेरे क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सैंपल्स में, A और B 2 डिफरेंट सैंपल्स हैं, मेरे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो यू कैन से P1 इज इक्वल्स टू P2, V1 इज इक्वल्स टू V2, राइट। ये चीज हो गई। यहाँ पे एवोगैड्रो की जो सिचुएशन है वो ये बोली गई कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सैंपल में वो भी क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे दोनों में। तो आई कैन से N1 इज इक्वल्स टू N2 इस थ्योरी के बाद, तो ये हो जाएगा N1 इज इक्वल्स टू N2, नंबर ऑफ मोल्स इन A सैंपल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इन दी B सैंपल। दिस इज दी एवोगैड्रो लॉ। मीन्स टेम्परेचर सेम रखा है मैंने दोनों का, ठीक है, दोनों A B सैंपल में टेम्परेचर सेम है, ठीक है। अगर मेरे पास प्रेशर 1 है, प्रेशर 2 है, टेम्परेचर 1 है, टेम्परेचर 2 है, देन नंबर ऑफ मोल्स इन A सैंपल एंड नंबर ऑफ मोल्स इन B सैंपल आर ऑल्सो equal. So this is known as your Avogadro law and this is the whole ideal gas theory. यही आपकी आइडियल गैस की थ्योरी है। आइडियल गैस की थ्योरी में आपके पास क्या है, PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। यहाँ पे आपको P तो पता है, P stands for pressure, V stands for your volume, this is for your pressure, and T stands for your temperature, right? And here N is your number of moles and R is the constant. This is your ideal gas law. Okay. Now
Next we have liquefaction of gases. Liquefaction of gases, when pressure on a gas is increased, its molecules closes together and its temperature is reduced. ठीक है, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं गैस में तो उनके मॉलिक्यूल्स एक साथ आ जाते हैं, क्या है ना, मॉलिक्यूल एक साथ आ जाएंगे, प्रेशर बढ़ाया तो ऐसे कंप्रेस किए जा रहे हैं ना, और गैस तो कंप्रेस हो ही जाती है, और टेम्परेचर क्या है, रिड्यूस हो जाएगा, विच मूव्स इनफ एनर्जी टू मेक इट चेंज फ्रॉम द गैसेस टू लिक्विड स्टेट, जिसकी वजह से क्या होगा, वो गैस से लिक्विड स्टेट में उसे चेंज कर देगा. तो हमारे पास 3 मेथड है विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर. फर्स्ट इज फैराडे मेथड, सेकंड इज लिंडेज मेथड एंड थर्ड इज क्लॉड्स मेथड. ओके, सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द Faraday's method. In Faraday's methods, it was able to, means Sir Faraday was able to liquefy gas with high critical temperature such as the chlorine, hydrogen, sulfide, carbon dioxide by the application of pressure alone. तो वो अकेले प्रेशर प्रोवाइड करके वो गैस को लिक्यूफाई कर सकते थे विथ डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स, सर्टेन जो भी हमारे पास है, जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फाइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है. नेक्स्ट वी हैव लिंडेज मेथड. इन दिस व्हाट वाज दैट, इन दिस मेथड वो मेक्स यूज ऑफ जॉल थॉमसन इफेक्ट. लिंडेज मेथड में क्या है आपका, लिंडेज मेथड में क्या आपका जॉल थॉमसन इफेक्ट काम करता है एंड इट इज यूज टू लिक्विफाई एयर और अदर गैसेस. तो लिंडेज मेथड से हम एयर को या अदर गैसेस को लिक्विफाई कर देते हैं. ठीक है, सो इसमें क्या है, इसका भी प्रिंसिपल सेम ही है कि कैसे काम करना है, गैस को लिक्विफाई करने का, कंप्रेस करके प्रेशर रिड्यूस होता है जिस तरीके से. लेकिन इसमें क्या था, इसका बहुत एक डिसएडवांटेज था लिंडेज मेथड का. व्हाट इज द डिसएडवांटेज? द डिसएडवांटेज इज दैट कि इसमें लोअर यील्ड मिलती थी, जो हमें प्रोडक्ट यील्ड मिलती है वो 10% मिलती थी. तो कम यील्ड मिलना और ज़्यादा हमारा मैन पावर, मटेरियल कॉस्ट का लगना, इक्विपमेंट्स का लगना और हमको यील्ड कम मिलना, दैट्स वाई दिस मेथड इज नॉट दैट मच सक्सेसफुल. दूसरा, हाई जो है इसका हाई पावर चाहिए. ठीक है, ऊपर से इसका जो इक्विपमेंट है वो बहुत रोम्बस्ट होता है. ठीक है, एज वेल एज जो मेथड है हमारा लिक्विफाई करने का गैस का वो बहुत कॉस्टली हो जाता था. सो दीज आर द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंडेज मेथड. थर्डली वी हैव क्लॉड्स मेथड. इट इज अ मेथड, a process of liquefying air on a commercial basis. ठीक है, next we have aerosols. Aerosols are known as pressurized packages which are used as liquefied propellants. Liquefaction of a gas can be achieved by applying pressure on it and keeping the temperature below the critical point. Critical point you already know. ठीक है, so when the pressure is reduced, the molecules expand and the liquid revert back to the gaseous state. Aerosols are based on the principle of reversible change of state on the application of and the release of pressure. So we can define aerosols are convenient and easy to use. Medication is dispensed in a ready to use form on pressing a button. Aerosols आपने देखे हैं ना, उस टाइप के, मीन्स रेडी टू यूज फॉर्म में होता है, यूल प्रेस अ बटन एंड आपको उधर से एक नई डोज मिलता जाएगा, रेडी टू यूज होता है. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ डिस्पर्जन सिस्टम that functions on the power of a compressed or liquefied gas to expel the contents from the container. The propellant which is used in such products are generally fluorinated hydrocarbons, although gases such as nitrogen and carbon dioxide are also being used in this form. ठीक है, now we have mechanism and function of aerosol. Assembly is already mentioned here. And we have components of aerosol. Firstly we have product concentrate. Product concentrate का function क्या है, drug with the other ingredient, and type क्या होता है इसका, solution form में होगा या suspension में होगा या emulsion form में होगा. Next we have container. Container का काम क्या है, to carry the product, right? उसका type क्या है, tin plated हो सकता है, steel हो सकता है या फिर glass का हो सकता है. Next we have propellant. Function of propellant is to develop pressure with the container and to expel the product. Propellant का काम क्या है, वो कंटेनर के साथ प्रेशर को क्रिएट करेगा जिससे प्रोडक्ट क्या होगा, बाहर आएगा. टाइप जैसे क्या हमारा ट्राईफ्लोरोक्लोरोमीथेन है ना, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन आर ऑल मोस्ट यूज्ड
commonly used. Next we have valve. Function of valve is delivering the content. Valve जो होता है जहाँ से हमारा content बाहर, valve means जो एक पाइप ऐसे कनेक्टेड होता है जिससे बॉटम से आपका प्रेशर की वजह से जो आपका ड्रग कंपोनेंट है वो बाहर आ सके. So type containers continuous spray valve. When to press the button, it will continuously sprays the medicines. Liquid metering valves, when you press the button, it will spray some amount of medicine. Next we have accuator. Function is this: for opening the valve and producing required टाइप ऑफ डिस्चार्ज. टाइप क्या है? स्प्रे या फॉर्म्स, जो फॉर्म्स आप घर में यूज करते होंगे, है ना, स्प्रेज आप जो यूज करते हैं बॉडी डिओड्रेंट्स वाला, दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर aerosols. Mechanism and next is the product concentrate in the container is in equilibrium with liquid and gas state when accuator is pressed and valve opens. Since the product is under pressure, the vapor above the liquid concentrate push the product down, then the product get expelled through the dip tube from the container. Then the compressed gas should have initial pressure and remains constant during the usage, and this required the calculation in the use of gases and can be done by Boyle's law and ideal gas law. Boyle's law तो आपको पता है ना, Boyle's law में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके जब चलते हैं. Now these are the applications of aerosols. Administration of drug from aerosol product is easy with, that's why it can be applied directly to the affected parts and avoid skin introduction into the body cavity and passage. Aerosols administration gives very efficient and quick relief. तो क्या है, aerosols का application सबसे ज़्यादा कि easily है, खुद से लगा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ईजी है, क्विक रिलीफ होता है, एफिशिएंट होता है. जैसे आपने देखा होगा कि पहले वॉलिनी का हमारे पास ऑइंटमेंट होता था, है ना, टॉपिकल्स. अब क्या है, वॉलिनी स्प्रेज आर देयर. तो व्हेन स्प्रे ऑन स्किन सम प्रोपेलेंट कूल दी टिश्यू ड्यू टू दी सडन एक्सपेंशन ऑफ प्रोपेलेंट. कैटेगरी में यहाँ मेंशन है बेटा, आपका लोकल एनेस्थेटिक्स है, ठीक है, अस्थमेटिक्स हैं, आपके एनाल्जेसिक है, ब्रोंकोडायलेटर एजेंट्स हैं एंड एंटीहिस्टामिनिक्स हैं. जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स में आपके पास क्या है, हिलेक्स स्प्रे है. अस्थमेटिक्स में क्या आपका बीकामिथासोन डाइप्रोपेनेट है, फिर आपके एनाल्जेसिक में आयोडेक्स स्प्रेज हैं एंड ऑल, ठीक है. नाउ प्रोडक्शन ऑफ एरोसोल प्रोडक्ट्स, कि एरोसोल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कैसे होता है. फर्स्ट देयर आर टू मेथड्स विच आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ एरोसोल्स. फर्स्ट प्रेशर फिल्ड मेथड एंड सेकेंड इज योर कोल्ड फिलिंग मेथड. ओके, सो pressure filled method is this. In this method the product concentrate is placed in the container and closed with the valve. The product is maintained below critical temperature, slightly below boiling point, and critical temperature is defined as the temperature above which the liquid shows properties which are intermediate between gas and liquid. Propellant gases liquefy in this container. Next we have cold filling method. This method involves the conventional process of filling. Since the propellant is a gas at room temperature, it is liquefied lowering the temperature below its critical temperature. The product concentrate is also cooled by the temperature is about 30 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, and the chilled concentrate is introduced into the chilled container and liquefied propellant is added. Sufficient time is given for propellant to give vaporized the container enclosed. After packaging the container, it equilibrated to the room temperature. The propellant in the container is get vaporized partially, then build up sufficient pressure. Once the valve is opened, the content is expelled due to high pressure in the container. So this is the reference, and thank you for the lecture.